Now this is our topic, that is a revaluation account. पुनर्मूल्यांकन खाता है ये. So whenever there is a change in profit sharing ratio, whenever is change in partnership deed, there is a need to prepare the revaluation account, because in revaluation account, after preparing this revaluation account, we have to divide all the things in the new ratios. So before using new partnership deed, we have to settle all the previous profits and losses. We have to distribute all the previous profit and losses among the old partners in old profit sharing ratio. That's why we have to prepare the revaluation account. That nature of revaluation is nominal account, and nominal account says, like the profit and loss, it is nominal accounts, and rule is debit all losses and expenses and credit all profits. But the difference between the profit and loss and this revaluation account is that in profit and loss we have to record the expenses and losses, profits and incomes, but in revaluation account we have to make the adjustments only about the assets and liabilities, which will be recorded there. How we will record the assets and liabilities? First of the assets in prices or less liabilities prices, we have to compare the book value with the market value. There may be obviously some differences. If there is no difference, then no profit, no loss. But if there is difference, it may be profit, it may be loss. How we will decide? What we have to record in revaluation? Increase in assets, because increase in assets is a profit. So rule कहते हैं increase in assets debit and increase in liabilities credit, decrease in assets credit and decrease in liabilities debit. Say by using this we have to record a difference, that is important, difference in the value of assets and liabilities in the revaluation account. Assets liabilities की वैल्यू को बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, एक डिफरेंस आएगा. उस डिफरेंस को हमें रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करना है, लेकिन वो जो डिफरेंस है हमारे लिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. पॉजिटिव के सेंस में होगा, जब भी हमारी एसेट्स बढ़ेगी तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है, अच्छा है, प्रॉफिट्स है, गेन है, क्रेडिट किया जाएगा. और जब भी हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ेगी वो हमारे लिए जो डिफरेंस आएगा, लाइक हमारे क्रेडिटर्स 10,000 से 15,000 हो गए, इंक्रीज़ तो है लेकिन क्या लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई है. लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होना हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसके लिए इसको हम लॉस की तो ट्रीट करने वाले हैं. मीन्स इंक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ डेबिट करना पड़ेगा और डिक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करना पड़ेगा. तो डिफरेंस से ही हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाले हैं. व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड देन न्यू वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ विल बी शोन इन द बैलेंस शीट. अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो बैलेंस शीट में नई वैल्यू प्रेजेंट करनी है. व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड और एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर न्यू net effect is done through the partners capital account and old values of assets and liabilities will be shown in the balance sheet. इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है. ये दो केस हो सकते हैं हमारे पास. कब कहा जाएगा प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू दिखा देंगे. लेकिन अगर कहा जाता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए बिना इन वैल्यूज़ के इम्पैक्ट को दिखाना है, तो वैसे ही करने वाले हैं जैसे कि हमने एक्युमुलेटिव प्रॉफिट्स को जब बैलेंस शीट में दिखाना था 4 स्टेप्स फॉलो किए थे, वैसे ही करना है उसको. तो ये 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करके इसको स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट सिंपल केस जो मोस्टली हमारे पास आता है, when revaluation account is prepared and revised values are presented in the new balance sheet. We are taking the example, ABC are partners, their old ratio is 5:3, new ratio is 2:1, and balance sheet is given. In balance sheet, liabilities are general reserve 20,000, workman compensation reserve 30,000, and creditor 50,000, land building 2,60,000, machinery 350,000, 3,50,000, and stock is 90,000. डेटर इज़ 1 लाख एंड बिल्स रिसीवेबल इज 70,000. मीन्स इस तरह से क्वेश्चन हमें दिया होगा और क्वेश्चन में बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होगी, और उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी रीवैल्यूएशन में ही एडजस्ट करनी है. बट मैटर करता है कि लाइन क्या दी हुई है. सिंपल का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ तो ओके, we have to prepare the revaluation account and show the revised value in the balance sheet. But if they are saying without affecting the balance sheet values, you have to give the, or you have to adjust the effect of these changes, then we will solve this question in different way. So अभी हमें कहा जा रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो क्या करने वाले हैं. फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी है, लैंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाई 10%, 2,60,000 है. अप्रिशिएट बढ़ रही है मीन्स 2,60,000 का 10% निकालोगे 26,000 increase in assets. It is like a profit.
और हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना इंक्रीज़ हुआ? 26,000। डिफरेंस 2,60,000 था, 26,000 और बढ़ गया है। तो जो डिफरेंस 26,000 इंक्रीज़ है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम पोस्ट कर देंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये इंक्रीज़ इन एसेट्स है। तो ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा हमारा। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड में हम इंक्रीज़ इन लायबिलिटीज़ और डिक्रीज़ इन एसेट्स दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये लॉस होगा। और क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट है ना रिवैल्यूएशन, डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स के सिचुएशन में होगा हमें एज ए बिजनेसमैन, जब भी हमारी एसेट्स बढ़ेगी प्रॉफिट मानेंगे, जब भी हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी हम प्रॉफिट्स मानने वाले हैं। सो इंक्रीज़ हो रही थी लैंड एंड बिल्डिंग, 26,000 दिखा दिया। सेकंड क्या है? मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड और रिड्यूस्ड बाय शब्द लिखा हुआ है, तो आपको इमीडिएटली कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई करके। मशीनरी 3,50,000, उसका 10% डिक्रीज़ करना है, मीन 35,000 डिक्रीज़ इन एसेट्स लॉस, डिक्रीज इन एसेट्स लॉस टू मशीनरी 35,000 डेबिट साइड में। स्टॉक भी इंक्रीज्ड, अगेन स्टॉक एसेट्स है, बढ़ रहा है, तो पहले तो साइड डिसाइड कर लो। स्टॉक बढ़ना एसेट्स है, एसेट्स बढ़ रहा है, तो बाय स्टॉक लिखना है। कितना? स्टॉक भी इंक्रीज टू 1 लाख। टू जब शब्द आएगा, टू मीन्स लिमिट है, इसका मतलब होता है कि स्टॉक अब 1 लाख रुपये हो गया है। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कैलकुलेटेड है। इट इज़ इंक्रीज टू 1 लाख मीन्स 90,000 से 1 लाख कर दिया। ठीक है, 1 लाख हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ है। अब इसका डिफरेंस निकाल लो, कितना बढ़ गया? 90,000 से 1 लाख मीन्स 10,000 इंक्रीज़ हो गया। अगेन इंक्रीज इन एसेट्स है, बाय स्टॉक 10,000 लिख दोगे जैसे रिवैल्यूएशन में लिखा हुआ है। नाउ फोर्थ, बिल्स रिसीवेबल, फिर से एसेट्स है, इट इज़ डिक्रीज्ड, एसेट डिक्रीज होना लॉस है। सबसे पहले साइड डिसाइड करके लिख देंगे 2 बिल्स रिसीवेबल, रिवैल्यूएशन में लिख देंगे 2 बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट निकालेंगे। बिल्स रिसीवेबल भी डिक्रीज टू 50,000, अगेन 2 आ गया, मीन्स कैलकुलेटेड अमाउंट है। अब हमारा बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में 50,000 दिखाई देगा, पहले 70,000 था, 50,000 दिखाई देगा। कितना कम हो गया? 20,000, तो लिख देंगे रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया, 2 बिल्स रिसीवेबल 20,000। ऐसे ही प्रोविज़न लायबिलिटीज़ होते हैं, प्रोविज़न ऑन डेटर भी क्रिएटेड, बढ़ रही है लायबिलिटीज़, इंक्रीज इन लायबिलिटीज़। हमने क्या कहा था रिवैल्यूएशन में? डेबिट साइड में लिखेंगे इंक्रीजिंग लायबिलिटीज़ किस नाम से बढ़ गई है? प्रोविज़न ऑन डाउटफुल डेट्स कितनी बढ़ गई है? प्रोविज़न ऑन डेटर्स भी क्रिएटेड एट 5%। अब डेटर्स को देखना पड़ेगा कितने डेटर्स हैं बैलेंस शीट में, 1 लाख के हैं। 1 लाख पे 5% बनाना है प्रोविज़न, 1 लाख का 5% 5,000 हो गया, लॉस है, रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया, तो प्रोविज़न ऑन डाउटफुल डेट्स। ऐसे ही अ क्लेम ऑन WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ 20,000, इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ है, बट इसमें बहुत ध्यान से देखना है। अगर कोई क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे दिया हुआ है तो क्या हमारे पास रिजर्व बना हुआ है? रिजर्व बना हुआ है 30,000 और क्लेम है 20,000। इट मीन्स हमें एक्स्ट्रा कोई लॉस नहीं हो रहा है, हम पहले से प्रिपेयर्ड थे इस लॉस के लिए। तो जब कोई एक्स्ट्रा लॉस नहीं होगा तो रिवैल्यूएशन में आप ना डेबिट करने वाले हो ना ही क्रेडिट करने वाले हो, इसका एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू होगा। अगर रिजर्व नहीं बना होता बाई चांस, तब ये पूरा 20,000 रुपये रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाता है, लेकिन रिजर्व बना हुआ है, हमने पहले से सॉल्यूशन निकाला हुआ है उसका। 30,000 में से 20,000 हम पे कर सकते हैं आसानी से, फिर भी 10,000 बचेगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, तो इसका इफेक्ट जो है रिवैल्यूएशन पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व बना हुआ है। किसी भी क्लेम के अगेंस्ट अगर रिजर्व सफिशिएंट बना हुआ है तो रिवैल्यूएशन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, और अगर रिजर्व कम पड़ता है तो फिर उस डिफिशेंसीज के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्रेडिटर के बारे में कुछ दिया नहीं हुआ है, एक्सपेंसेस के बारे में दिया हुआ है। एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वाज पेड बाय फर्म फॉर रीवैल्यूएशन। जब मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट किया गया तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज डेटा कलेक्ट किया गया, उसके लिए एक किसी पर्सन की हेल्प ली गई और 5,000 रुपये खर्च आया उसके ऊपर। अब इंक्रीज़ हो गया, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, डेबिट कर दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दोगे टू कैश 5,000, डिफरेंस निकालोगे। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मीन्स क्रेडिट और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस है। लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयर में डिवाइड कर देंगे। बाय लॉस ट्रांसफर टू ABC इन ओल्ड रेशियो 5:3 to 14,000, 18,700, 5,800, 29,000 का लॉस आया है। ठीक है, so this is the first method which we have to follow. In this we have to prepare the revaluation account and we have to show the revised values in the balance sheet also, like land and building 2,60,000 थी, 26,000 इंक्रीज़ हुआ है, अब टोटल हो जाएगी 2,86,000। मशीनरी डिक्रीज़ हुई थी 3,50,000 से 35,000 डिप्रिशिएशन हुआ, अब रहेगी वैल्यू 3,15,000। स्टॉक हमने कहा था स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड
टू 1 लाख, तो अब 1 लाख लिखा दिया, पहले 90,000 था। बिल्स रिसीवेबल 70,000 की जगह 50,000 आ गए। डेटर्स पे 5,000 का प्रोविज़न लगा है, माइनस कर दिया, 95,000 आया। इधर भी क्रेडिटर्स 50,000 थे। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम देखो 20,000 रह गया, जो अभी हमने पे नहीं किया, क्लेम है ना, 30,000 से 20,000 क्लेम है, 20,000 दिखा दिया क्योंकि वो पेमेंट नहीं हुआ है। तो इस तरह से रिवाइज वैल्यू दिखानी पड़ेगी बैलेंस शीट में। जब भी रिवैल्यूएशन बनेगा बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू दिखानी है। क्लियर? दिस इज़ अ फर्स्ट मेथड।